A very good morning to all of you. So in the last class we have completed the chapter 7 of your Indian Economic Development class 12. So in today's class we are going to start a new chapter 8, that is infrastructure. Okay. So in this chapter we are going to study the first one is what is infrastructure, the meaning of the infrastructure, what are the different types of the infrastructure, importance of the infrastructure, state of infrastructure in India. In your new syllabus, according to that we have already discussed that the some of the topic of your economics has been deleted due to COVID. So we will not study this topic, that is energy. Okay, so in this we will not discuss about the what is the classification of sources of energy, main sources of energy, consumption pattern, and sectoral share of the commercial energy consumption. So it will not be discussed in your class. So first of all we will discuss what is the meaning of infrastructure, types of infrastructure, importance of infrastructure, state of infrastructure in India. Next topic we will discuss the electricity or the power. So in this we will discuss the sources of the power generation, challenges in the power sector, and measures to solve the energy crisis. Okay, next we will discuss the health. The topic is health, in which we will discuss the health infrastructure, health infrastructure in the private sector, Indian system of medicines, rural, urban and poor rich divide, women health, and the state of health after independence. And next and the last topic of this chapter, the challenges in the health infrastructure. So in this we will discuss the measures to solve deficiency in the health infrastructure. Okay, so in this chapter we are going to study about these topic, but we will not discuss about the topic that is energy. Okay, it has been deleted from your syllabus. So let's start. Yes, infrastructure plays a very important role in the development of a nation. We have observed that some states like Punjab, Haryana, Himachal Pradesh prosper in agriculture and horticulture. Maharashtra and the Gujarat are the industrially most advanced than others. Kerala has excelled in the literacy, health, sanitation, and the tourism. All the above examples refer to the excellent infrastructure the above mentioned states have. Okay, so what it is talking about that the infrastructure plays very important role. Okay, infrastructure क्या करता है, बहुत important role play करता है in the development of a nation. ठीक है, अगर किसी भी country का, अगर किसी भी nation का development करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का स्ट्रॉन्ग है इट मीन्स कि कंट्री का डेवलपमेंट प्रॉपरली होगा इन पॉजिटिव मैनर. सो वी हैव ऑब्जर्व दैट सम स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश प्रॉस्पर इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. ओके, हम ये देखते हैं कि जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश ऑल्सो कैम इन दिस, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब क्या हैं, दे आर एक्सेल्ड और दी वेरी इन पॉजिटिव. इन लोग किसमें, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में इन लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड. सो महाराष्ट्र एंड गुजरात आर इंडस्ट्रियली मोर एडवांस देन दी अदर. अब महाराष्ट्र है और जो गुजरात है वो क्या है, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर हम अगर देखते हैं उसके पर्सपेक्टिव से, तो ये जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं देन दी अदर स्टेट्स. केरला हैज़ एक्सेल्ड इन द लिटरेसी. हमें पता है कि केरला की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे पूरे ऑल ओवर द इंडिया सबसे ज़्यादा होता है, 90+ हमेशा ही रहता है, 93, 94 इतना क्या होता है केरला का लिटरेसी है. हेल्थ भी वहाँ का प्रॉपर फैसिलिटी है, सैनिटेशन एंड टूरिज़म के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सेल्ड है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है. सो ऑल दी अबव एग्जाम्पल रिफर्स टू दी एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं,
इन एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब उस कंट्री में उस स्टेट्स में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। अब जैसे हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, तो ये इसमें एग्रीकल्चर में और अदर हॉर्टिकल्चर में अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। जहाँ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छा है। अब महाराष्ट्र और गुजरात में जाते हैं तो वो वहाँ पे क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे वैसी फैसिलिटीज़ क्या हैं, ज़्यादा हैं। ओके, सो ऑल दी अबव एग्जाम्पल रेफर्स टू द एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो सारे एग्जाम्पल हैं वो क्या शो करता है कि यहाँ पे एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। द अबव मेंशन स्टेट्स हैव, जो सारे अबव के जितने भी स्टेट्स मेंशनड हैं इन सब में क्या है, एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो इट इज़ ऑल बिकॉज दीज स्टेट्स हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरियाज दे एक्सेल देन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि ये जो सारे स्टेट्स हैं वो किस में बेटर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में। इन द एरियाज दे एक्सेल, ठीक है, उन एरिया में जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट हैं देन दी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। कि अदर स्टेट के कंपैरिजन में ये जो सारे स्टेट्स हैं जो हर एक एरिया में एक्सेल हैं, वो क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉपर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। सो सम हैव बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, कुछ के पास क्या है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जिसका अच्छा है वहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ क्या है वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। अदर हैव बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, अदर क्या है, अदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। और आर लोकेटेड नियर दी पोर्ट्स, और वो क्या होते हैं, और मे भी वो जो सारे स्टेट्स होते हैं जैसे आपका महाराष्ट्र है, जो सारे पोर्ट के साइड में होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो सारे लोकेटेड पोर्ट के लोकेट में ही होते हैं, मतलब पास में ही होते हैं, पोर्ट्स के ही आजू बाजू ही वो सारे वो क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, विच मेक्स रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ईज़िली एक्सेसिबल। इससे क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे जो है महाराष्ट्र और गुजरात इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, तो इनके लिए ये सारे क्या हैं कि इनके पास पोर्ट जो होते हैं ना, जहाँ से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो सारे क्या हैं, पोर्ट इनके बहुत पास में ही हैं, लोकेट करते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या है, ईज़िली उनके पास एक्सेसिबल है, मतलब वो ईज़िली उनको अवेलेबल हो जाता है। सिटीज़ लाइक बेंगलुरु इन कर्नाटका अट्रैक्ट मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज़। ठीक है, जो सिटी है आपको पता है बेंगलुरु मीन्स बैंगलोर, ये क्या है जो कर्नाटका में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट एमएनसीज़ को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एमएनसीज़ है, क्योंकि ये जो स्टेट है बेंगलोर, ये बहुत डेवलप्ड स्टेट है एज़ कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स, बिकॉज दे प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। यहाँ पे जो एमएनसीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि वो दे वांट टू एस्टेब्लिश देयर इंटरप्राइजेज एट दी बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर इन दी बैंगलोर, वो बैंगलोर में क्या करना चाहती हैं, सेटअप करना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है वो क्या है, वो वर्ल्ड क्लास की बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए। ठीक है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कोई भी कंट्री कभी भी डेवलप कर ही नहीं सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये बोलें कि इस कंट्री में एजुकेशन इतनी अच्छी क्यों नहीं है, अगर हम ये बोलें कि स्कूल बच्चों को प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो क्या वो बच्चे स्कूल जा पाएंगे? जब स्कूल नहीं बच्चे जा पाएंगे तो उनकी फ़र्दर हम कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छी जॉब पा सकते हैं या उनकी वो इनकम नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट दे विल मेक मोर एंड मोर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ ऑफ ए कंट्री? नहीं। तो क्या है कि एक बेस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बेस फॉर एनी कंट्री, कि अगर उनको डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का होना चाहिए। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इट्स टाइप, इसके क्या टाइप्स हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, मेजर्स टू मीट द क्राइसिस इन द सर्टेन कंस्टिट्यूएंट्स लाइक अ पावर एंड द हेल्थ। ठीक है, अब हम ये भी मेजर्स भी देखेंगे कि जो भी क्राइसिस हैं किस में, पावर में और हेल्थ में, तो ये सारी कौन सी ऐसी क्राइसिस हैं, तो ये पावर हेल्थ ये सारे क्या आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आते हैं।
सो इस चैप्टर में we will discuss all these things, what are the infrastructure types, problems, measures to remove, or what are the different factors where these kind of problems faces. So we will discuss all these things in this chapter. Okay, so let's start. Infrastructure meaning: all the support structures, data, services and the facilities which facilitate development of a country constitute its infrastructure. ठीक. So infrastructure provides supporting services in the main areas of the industrial and the agricultural production, domestic and the foreign trade and commerce. Okay, all the support structure, जितने भी support structure होते हैं, that is the services or the facilities which facilitate development of a country. ठीक है, जितने भी सपोर्ट है, देखो कोई भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो उसके कुछ भी एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कुछ सपोर्ट करने के लिए होगा तभी कंट्री डेवलप कर पाएगी. तो जो भी सारे सपोर्ट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, वो सारे क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं. अगर हमको एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो अगर हमारे पास कोई इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, फर्टिलाइज़र नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वेयर हाउसिंग नहीं है, तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर कभी डेवलप कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा. इसके लिए हमको चाहिए कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कोई सर्विसेज चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए. बैंक्स के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर वो लोन ले पाएंगे तभी वो क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती. सो ऑल दी सपोर्ट स्ट्रक्चर, दैट इज सर्विसेज और दी फैसिलिटीज़ विच फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, जो कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है, कंस्टिट्यूट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरियाज ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करता है? इट प्रोवाइड दी सपोर्टिंग सर्विसेज. ठीक है, सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द मेन एरियाज ऑफ द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. किस एरिया में? कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत सपोर्टिंग रोल प्ले करता है. डोमेस्टिक एंड दी फॉरेन ट्रेड एंड दी कॉमर्स, डोमेस्टिक ट्रेड में भी, क्योंकि अगर हमको अपनी कंट्री में ही क्या करना है? ट्रेड करना है. अब अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं हुई, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं हुई, इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं हुई, बैंक्स की फैसिलिटी नहीं हुई जहाँ से हम लोन ले सकें, तो क्या ये सारी बिना फैसिलिटीज़ के कोई भी कंट्री में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है. ठीक है, और फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स में भी क्या होता है? ये सपोर्टिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग रोल प्ले करता है. सो दीज सर्विसेज इंक्लूड रोड्स, इसमें क्या क्या आते हैं? रोड्स आ गए, रेलवेज़, पोर्ट्स आ गए जहाँ से गुड्स क्या हो गए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे, एयरपोर्ट्स आ गए, डैम हो गए, पावर स्टेशन हो गए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ऑयल और जहाँ से गैस पाइपलाइन आती है वो, टेली कम्युनिकेशन जिससे हम कम्युनिकेट करें, फैसिलिटीज़, द कंट्रीज़ एजुकेशनल सिस्टम, कंट्री का एजुकेशन सिस्टम की वहाँ पे स्कूलिंग हो, एजुकेशन प्रोवाइड हो, इंक्लूडिंग स्कूल एंड कॉलेजेस, जिसमें क्या हो? स्कूल एंड कॉलेजेस हो. हेल्थ सिस्टम इंक्लूडिंग हॉस्पिटल हेल्थ सिस्टम हो जिसमें हॉस्पिटल आए, सैनिटरी सिस्टम आए इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या है? क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को क्या हो? पीने के लिए एकदम क्लियर पानी मिले. एंड दी मॉनिटरी सिस्टम हो जिसमें बैंक आए. ठीक है, लोग वहाँ से फैसिलिटीज़ ले सके, इंश्योरेंस आए, एंड दी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी LIC होता है आपका, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो जितने भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो दीज ऑल आर दी कॉल्ड एज द इंफ्रास्ट्रक्चर. यही इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी कंट्री के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हैव यू एवर इमेजिन कि आपके पास ये सारी सर्विसेज, जितनी ये सारी सर्विसेज हैं, अगर वो नहीं हो आपके पास, ये सब आपके पास है ही नहीं, तो क्या कोई कंट्री डेवलप कर पाएगी? कभी नहीं कर सकती. इसीलिए बोला जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? किसी भी कंट्री का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सो दैट कंट्री कैन ग्रोथ एंड डेवलप, कि कंट्री तभी ग्रोथ और डेवलप कर पाएगी.
So some of these facilities have direct impact on the production of goods and services. इन सारी facilities का क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, while other gives indirect support by building the social sector of the economy. ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे बाय बिल्डिंग द सोशल सेक्टर ऑफ द इकॉनमी, क्योंकि वो इकॉनमी में क्या कर रहे हैं, सोशल सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं. तो कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसी भी फैसिलिटीज़ हैं, दे डायरेक्टली प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ और सम आर दी प्रोवाइड द इनडायरेक्ट सपोर्ट. ओके, सो दस infrastructure refers to those basic elements of the economic and social aspect which provide support to the production activity in the economy. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर refers to those basic elements, कि वो बेसिक सारे एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स के विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, जो क्या करते हैं, प्रोवाइड ये करते हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अभी कोई भी इंडिविजुअल इज़ प्लानिंग टू प्रोड्यूस समथिंग. ओके, अब वो प्लानिंग कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एक स्मॉल इंटरप्राइजेस स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, और मैं सोच तो ली, बट मेरे पास ना लोन ना बैंक की फैसिलिटी है जब मैं वहाँ से पैसे ले सकूँ, ना कोई मेरे पास कोई प्लेस है जहाँ पे मैं स्टार्ट कर सकूँ, ना मेरे पास कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं है, ना ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है. हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस तो करना चाह रहे हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं. क्या इन सब के बिना कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सकती है? नहीं हो सकती है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू दोज बेसिक एलिमेंट्स. ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उसके लिए ऐसा चाहिए. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स के विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकॉनमी, जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी किसी भी इकॉनमी में हो सके. सो इन अदर वर्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द फिजिकल framework of those facilities and one line has been missed. So these services are very important for economic and social growth of the nation. ये जो सारी सर्विसेज हैं वो किसी भी इकॉनमी के लिए, किसी भी कंट्री और नेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर दी इकोनॉमिक एंड दी सोशल ग्रोथ. सोशल ग्रोथ अगर ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हो तो क्या सोसाइटी डेवलप कर पाएगी? और जब सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकती है तो कोई भी इकॉनमी डेवलप नहीं कर सकती. इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो अर्निंग हो रही है, कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, सो डैट क्या हो रहा है कि कंट्री का ग्रोथ भी इंक्रीज़ कर रहा है. सो इन अदर वर्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल फ्रेमवर्क ऑफ दोज फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर द कंज्यूमर्स. ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आते हैं, फिज़िकल फ्रेमवर्क होता है, मतलब फिज़िकली जो हम काम कर रहे हैं ऑफ दोज फैसिलिटीज़, वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और सर्विसेज होती हैं थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस्ड हो रही हैं फॉर दी कंज्यूमर. देखिए, कंज्यूमर को हम लोग बोलते हैं किंग, बोलते हैं किसी भी मार्केट का, क्योंकि हर एक काम क्यों हो रहा है, बस एक डिमांड के लिए हो रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, डिमांड लोगों जो भी कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं, उनके डिमांड को फुलफ़िल करना है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा. ठीक है, अभी कोई भी नॉर्मल अर्निंग क्यों कर रहा है, वो अपनी बेसिक जो भी उसकी मिनिमम सब्सिस्टेंस नीड है उन्हीं के लिए कर रहा है, मतलब फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ, दीज ऑल आर द इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर यही नहीं होगा तो किसी की लाइफ का कोई मतलब नहीं है. तो गुड्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर दी सेटिस्फाइंग दी नीड्स ऑफ दी कंज्यूमर. तो ये सारी सर्विसेज के थ्रू, ये सारी फैसिलिटीज़ के थ्रू, सपोर्टिंग जो सिस्टम है उनके थ्रू क्या होता है कि गुड्स को प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर दी कंज्यूमर्स के लिए. सो दीज सर्विसेज हेल्प इन प्रमोटिंग प्रोडक्शन डायरेक्टली. ठीक है, ये सारे क्या होते हैं कि ये सर्विस हेल्प करती हैं जो प्रोडक्शन डायरेक्टली, कैसे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर एंड ट्रांसपोर्ट, एंड इनडायरेक्टली लाइक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल. ठीक है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी डायरेक्टली इम्पैक्ट कैसे होंगी कि जब हमको पावर मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, इंश्योरेंस की
फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बैंक्स की फैसिलिटी मिलेंगी। और इनडायरेक्टली क्या होंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन होगी तो ही तो हम ये कोई भी काम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाएंगे। या कोई भी हेल्दी नहीं है, ठीक है, हेल्दी नहीं है वो क्या कोई काम कर सकता है? अभी आप यही सोचो, आपकी तबीयत नहीं सही होती तो क्या आप 1 मिनट 10 मिनट भी आप पढ़ाई कर सकते हो? तो उसके लिए भी क्या है कि यू शुड बी हेल्दी, आपको हेल्दी होना पड़ेगा। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि आपके पास एजुकेशन अच्छी होगी, आपके पास हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, तो आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकोगे। सो दीज सर्विसेज हेल्प इन प्रमोटिंग प्रोडक्शन डायरेक्टली, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी जो सारे डायरेक्टली हैं, इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। और जो सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, दे डू नॉट डायरेक्टली परफॉर्म एनी एक्टिविटीज़, दे प्रोवाइड द डिफरेंट सर्विसेज इनडायरेक्टली, वो डिफरेंट सर्विसेज को इनडायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज types of infrastructure. What are the types of the infrastructure? So infrastructure can be categorized into economic and social, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड into 2, that is economic infrastructure or the social infrastructure. So in the economic infrastructure, energy, transport, communication will comes under the economic infrastructure, and in the social infrastructure, education, health, housing, these comes under the social infrastructure. So these services help in the promoting the production of the goods and services indirectly. The social infrastructure क्या करती हैं, जो social infrastructure होती है वो प्रोडक्शन की सर्विसेज में इनडायरेक्टली क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। और जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली क्या करते हैं, सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, 2 टाइप्स के होते हैं, इकोनॉमिक एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे ऑल आर द energy, transport, communication, and in the social infrastructure, education, health and housing, these all are comes under the social infrastructure. So what is social infrastructure? Economic infrastructure. Economic infrastructure, it includes those basic aspects of economic system which provide support to the process of economic development. ओके, ये इसमें वो सारे एस्पेक्ट्स आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के। इकोनॉमिक सिस्टम मीन जो भी हमारी इकॉनमी में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, विच प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे ऐसे वो सारे सपोर्ट ऐसे हैं जो इकोनॉमिक किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, ये प्रोसेस, ये उस प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये डायरेक्टली क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम किसके थ्रू आ रहे हैं, फॉर दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स कि हम कुछ काम कर रहे हैं, उसमें हमको क्या मिल रही है, अर्निंग मिल रही। कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरी इकोनॉमी की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें ये वो सारे सपोर्ट सिस्टम आते हैं, वो सारे सपोर्ट आते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दी इकोनॉमिक सिस्टम डायरेक्टली, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। इट इन्हांसेस द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ फिज़िकल कैपिटल, ठीक है। ये क्या करता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज की क्वालिटी को, जो भी रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी को इन्हांस करेगा, और एफिशिएंसी, जो भी फिज़िकल कैपिटल है, जो भी फिज़िकल कैपिटल होते हैं उनकी एफिशिएंसी को वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। सो इन अदर वर्ड्स इट इम्प्रूव द फिज़िकल कैपिटल स्टॉक, ठीक है। फिज़िकल कैपिटल स्टॉक को ये डेवलप करता है। इट प्रमोट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या प्रमोट करता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
ये सबसे पहले क्या करता है, जो फिज़िकल कैपिटल स्टॉक हैं, फिज़िकल कैपिटल स्टॉक को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, एज वेल एज इट प्रमोट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। It includes those basic aspects of economic system which provide support to the process of social development. जो भी social infrastructure है वो किस में help करते हैं, social development, जैसे education, health, ये these all are belong to the social development, ठीक है। इसमें वो सारे aspect आते हैं economic system के जो directly क्या करते हैं, support provide करते हैं social development में। So social infrastructure support the इकोनॉमिक सिस्टम इनडायरेक्टली, ठीक है। ये जो जितने भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। सो इट इन्हांसेस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, जैसे आप क्या है, आप एजुकेशन ले लोगे, आपकी जो फिज़िकल क्या है, आपकी हेल्दी हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ से रिलेटेड, तो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी इंक्रीज़ कर दिया। और क्या कर देगा, इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि जो भी हम ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एजुकेशन इज़ जस्ट अ ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ करता है। अगर आप प्रॉपर आपके पास एजुकेशन होगी तो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, एज वेल एज एफिशिएंसी भी ह्यूमन कैपिटल की इंक्रीज़ होगी। इन अदर वर्ड्स इट इम्प्रूव द ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। जैसे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो फिज़िकल कैपिटल स्टॉक को बढ़ाता है, फिज़िकल से रिलेटेड, कि हम डिफरेंट असेट्स और ये सब का यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, एज वेल एज ये क्या करता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज़ करता है, एंड इट प्रमोट्स दी सोशल डेवलपमेंट। ये क्या करता है, सोशल डेवलपमेंट की बात करता है। ओके, सो बहुत बेसिक डिफरेंस है कि वो क्या है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और सोशल इज़ इनडायरेक्टली इम्पैक्ट। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? फर्स्ट वन इज़ इट इंक्लूड दोज आस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें वो सारे आस्पेक्ट्स आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के जो क्या करते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एंड इन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इट इंक्लूड दोज आस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये किसकी बात करता है, सोशली डेवलपमेंट की बात करता है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। सेकेंड वन इज़ इट सपोर्ट द इकोनॉमिक सिस्टम डायरेक्टली। ये जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको डायरेक्टली सपोर्ट करता है, और इट सपोर्ट द इकोनॉमिक सिस्टम इनडायरेक्टली। अब एजुकेशन डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं करती ना, अगर आप क्या हो गए, आपके एजुकेटेड हो गए, आपकी हेल्थ सही होगी तो आप प्रॉपर काम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कर लोगे। तो यही होते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो आपको प्रॉपर सारी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, एनर्जी की फैसिलिटी चाहिए। तो ये क्या है, आप कोई भी प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो आपको जो एट प्रेजेंट तुरंत आपको चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डायरेक्टली जो इम्पैक्ट करता है वो इकोनॉमिक होता है, और सोशल क्या होता है, वो इनडायरेक्टली करता है। जैसे हम फिज़िकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस पढ़े थे कि वो फिज़िकल कैपिटल मीन्स कि आप कितना फिज़िकली जो भी कैपिटल होते हैं, जो असेट्स होते हैं, उन कितना आप यूज़ करते हो। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि वो एक ह्यूमन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। सो ऐसे ही डिफरेंस होता है इकोनॉमिक और सोशल में। सो इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो भी हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं उसकी ये क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, एंड इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ द फिज़िकल कैपिटल। ये फिज़िकल कैपिटल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहा है। ऑन कंट्रास्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, मतलब जो ह्यूमन कैपिटल है, अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी होगी, आपके पास प्रॉपर हेल्थ होगी, तो आप ज़्यादा ही कुछ अच्छे से डायरेक्ट एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम करोगे। तो इट इन्हांसेस द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा। इट इम्प्रूव द फिज़िकल कैपिटल स्टॉक। ये क्या करता है कि फिज़िकल कैपिटल का जो स्टॉक है उसको इम्प्रूव करता है, एंड इट इम्प्रूव द ह्यूमन कैपिटल स्टॉक।
इसको पढ़ते टाइम अगर कन्फ्यूजन हो रही होगी फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल की, तो एक बार चैप्टर 5 में आप लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जाके व्हाट इज़ फिजिकल कैपिटल एंड व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज़ इट प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करता है कि इट प्रमोट दी सोशल डेवलपमेंट। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. We will continue further in the next class. Okay, thank you.